Yes, yes, yes. I'm so glad. Anurag ji, Krishna ji. Well, I can see so many beautiful people there. Ajoy ji, Rajkumar ji, Sushil ji, Megha ji, Kumud ji, then Pradeep ji, Hari Shankar ji. There's so many beautiful people. I mean, I'm so glad to be a part of them. But shall we have this conversation in English or Hindi or mix? Acha ji, if some of you wants English, maybe you can just type in the chat or just raise your hand. I'll just browse through. If any of us wants pure English, otherwise फिर हम हिंदी में ही करेंगे. Otherwise we'll do Hindi only. But if there is someone who just can't follow Hindi, just please send a message. Mix. Yeah, mix is fine. Mix is fine. Okay. English. Okay. There are few, Swamiji, one or two saying English, so we can just maybe mix English in between. Okay, mix. Well, I'm so glad. I mean, this is my first session after long time in India. बहुत दिनों के बाद हमारा कोई पहला session हो रहा है. So I'm so glad. It said that everything had its own positives and negatives. अगर सब लोग अभी बैठे हैं घर के अंदर तो इसके बड़े सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं. And it is said that जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. As you see from your eyes, whatever glasses you have, that's how you see the world. So I see only positive things in the world. कि कितना वो है कि एक तो चलो सब लोगों से इस तरह से बातें हो जाती हैं, सबके पास कुछ समय है अपने लिए, वरना तो it's very difficult to find some time for ourselves. And well, I'm glad that everybody is here for listening to very very special thing about happiness. So I want to ask before we start, there are two types of happiness. One is temporary happiness, one is permanent happiness. ठीक है. So दो तरह की सुख है, एक तो क्षणिक है या वो टेम्परेरी है और दूसरा परमानेंट है. तो आप में से कितने लोगों को केवल टेम्परेरी चाहिए और कितने लोगों को केवल परमानेंट चाहिए? जरा हाथ उठा दें, हम जरा एक बार स्कैन कर लेते हैं आपको. कितने लोगों को, अच्छा कितने लोगों को टेम्परेरी सुख चाहिए, वो पहले हाथ उठाएं. हम देखें कितने लोगों को टेम्परेरी सुख चाहिए. अरे कोई हाथ ही नहीं उठा रहा अभी. अच्छा हाँ, मिल गए. कुणाल जी मिल गए, सुबोध जी मिल गए, है ना, और भी हैं. अच्छा चलो ठीक है, अभी हम दूसरी चीज पूछते हैं. आप में से कितने लोगों को परमानेंट सुख चाहिए, ये बताइए हमारे को. अरे वाह, देखिए अभी मजा आया. जरा सबको परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी तो किसी को चाहिए नहीं. ओके, वेरी नाइस. गुड, परफेक्ट. तो परमानेंट का सुख भी टेम्परेरी सुख से ही जाता है. रास्ता जो है ना, वो बड़े महल का रास्ता भी उसी सड़कों से जाता है. You have to go through temporary happiness. Without finding temporary happiness, you cannot find permanent happiness. That's for sure. तो अभी टेम्परेरी किस किस को चाहिए पहले बताओ. बिना टेम्परेरी पाए तो परमानेंट मिलेगा ही नहीं. तो वो तो चाहिए. बोलते हैं ना, it's like to find $1 million, first you have to have $100,000. No, unless you have $100,000, how can you have $1 million? So temporary सुख के लिए तो चाहिए पहले. temporary is a part and parcel of it. Now temporary सुख के लिए हमारे को तीन चीजें जो सबको चाहिए होती हैं वो चाहिए. What do we want in temporary happiness? Everybody wants health. Especially at this time, the most important thing is health, immunity system. अभी तो बड़ा एकदम बोलते ना कि ये कोरोना ने तो अपने हेल्थ की इंपॉर्टेंस जता दी है. पहले भी पता थी, लेकिन हम आंखों देखा इधर अनदेखा करके चलते रहते थे. We used to ignore it. But now corona has really made us to rethink that what are the real important things in life. That is our health. So for temporary happiness, you need to have a good health. Agreed? Everybody agrees? Okay, show me your thumb so that I know you are participating. आप सब मुझे ठेंगा दिखाते रहिए ताकि हमें पता चले है वहां पे. और ठेंगा ऊपर दिखाइए, नीचे मत दिखाना. Okay, so health, you need to have a good health. Then other important thing is love. प्रेम भी चाहिए.
बिना प्रेम के तुम्हारे पास सेहत तो अच्छा है, कोई तुम्हारे को पूछने वाला नहीं है, nobody is loving you, everybody just want to have some work done from you, तो भी क्या मजा आएगा? खुशी थोड़ी होगी उसमें, मजा थोड़ी आएगा। ठीक है, you need to have love, you know, relationships, you know, प्रेम चाहिए, दोस्तों का प्रेम चाहिए, अपने परिवार का प्रेम चाहिए, दुनिया से प्रेम चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया। देन द थर्ड इज हेल्थ के साथ में वेल्थ भी चाहिए। बिना वेल्थ के भी वो, बिना लक्ष्मी जी के भी नारायण जी का मजा नहीं आएगा इतना, तो लक्ष्मी देवी भी चाहिए, है ना। तो 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, लव एंड वेल्थ। तो इसीलिए हमने अकॉर्डिंग टू चाहे, भाई अगर आपके पास हेल्थ है, लव भी है, तो पैसा नहीं है तो भी मजा नहीं आएगा। अगर आपके पास सेहत भी है, पैसा भी है, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है, फिर लगे यार जीवन बर्बाद है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग व्हेन नोबडी लव्स अस, वी आर जस्ट लाइक अ रोबोट, जस्ट लाइक अ मशीन। सो द फर्स्ट थिंग इज हेल्थ, सेकंड थिंग इज लव, थर्ड थिंग इज money. Do you all agree with this? Everybody agrees? Yes? Please, 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 please show me your ठहंगा। मेरे को अपना अंगूठा दिखा दें तो हमें पता है कि भाई सब लोग को राजी हैं, अभी हमारी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। नाउ अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए? हाउ टू हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना। अभी हम कहाँ ढूंढ रहे होते हैं ये सारी चीजें? वी आर सर्चिंग इन पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, इवेंट्स, यू नो, हम इसी में ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से मिल जाए हमारे को कुछ सुखी, थोड़ा यहाँ से मिल जाए, थोड़ा वहां से मिल जाए, यू नो। एंड व्हाट हैपेंस, इट शोज ओनली ग्लिम्स, थोड़ी देर दिखता है फिर खो जाता है, और हम फिर ढूंढते रहते हैं उसको। भाई लोगों में भी तो सुख तो मिलता ही है ना, people give you joy, people give you happiness, but then with that comes lot of misery, you know, दुख भी साथ में आता रहता है हमारे लिए। अच्छा, अब इसको कैसे प्राप्त करना है? आप मेरे को ये बताओ, आप ही बताओ, ठीक है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप ही बताएंगे। जब आपकी ऊर्जा बड़ी होती है, when your energy levels are high, you know, or when your energy levels are low, what happened that time? Okay, we start with your energy levels. When the energy levels are down, कुछ रस नहीं आ रहा होता, can you have good health that time? No, for sure, when our energy levels are low, we cannot have good health. Okay, अच्छा, क्या होता क्या है? When what kind of feelings happen when your energy levels are low? You know, रस नहीं आता, you don't feel good, you feel pain, you feel lack of interest, you feel no enthusiasm, ठीक है, जोश नहीं आ रहा होता, रस नहीं आ रहा होता, कुछ काम करने में मन नहीं कर रहा होता, ठीक है, जीवन बोझ लग रहा होता है ना, सुस्ती मची होती है, लगता है बस लेटे जाओ, कुछ खाते जाओ, you know. So these are the qualities when the energy levels are low. You know, depression, what is depression? Depression is only energy levels are low. ठीक है, तो ये चलता है। तो ऐसे में अच्छी सेहत तो भूल जाओ, you know, you cannot have a good health at all. Then okay, how about love? If you are negative, if you are doubting, if you are angry, if you are depressed, who would like to be with such kind of people? ऐसे लोग के साथ कौन बैठना पसंद करेगा, ना? Agreed? मानते हो बात कि जब तुम्हारी ऊर्जा नीचे होगी तो कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, बोले यार डिप्रेस व्यक्ति के साथ बैठ के अपना भी दिमाग क्यों खराब करें, जाओ कुछ और दूसरा काम करते हैं। तो अभी पता चला क्यों लोग दूसरी जगह चले जाते हैं हमारे को छोड़ के। क्यों? ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है, हमारी ऊर्जा नीचे है, तो ऊर्जा का है सारा चक्कर। फिर तीसरा है अच्छा, धन चाहिए। भाई धन के बिना तो कुछ गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आप ये बताओ, अच्छा धन को हम ये बोलते हैं कि एक्सपर्टीज इन योर वर्क, कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, कुछ भी हो, चाहे मैं कह रहा हूं आप सब्जी बना रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, चाहे एक बड़े बिजनेसमैन हो, यू माइट बी अ बिग बिजनेसमैन और अ हाउसवाइफ, unless you are expert in your work, you cannot go through next level. जो लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, they are always in demand, doesn't matter which field you belong to, whether you are selling vegetables or whether you are selling computers, whether you are selling properties, doesn't matter what you are doing, you know. Do you agree with that?
आप एग्री कर रहे हो, है ना, कि जब तक हमारी ऊर्जा ही बड़ी नहीं होगी तो आप, और एक्सपर्टीज नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, और क्या आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी जब आपकी ऊर्जा डाउन होगी? नहीं ना भाई, आपकी ऊर्जा डाउन होगी तो आप किसी चीज में मन ही नहीं करेगा। जब मन ही नहीं करेगा तो आप अच्छे से काम कैसे कर सकते हो? बात समझ में आ रही है ना? डू यू एग्री? मतलब हिलते रहो, देखो क्या कुछ ना कुछ हम इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि आप वरना बैठे बैठे चीज सुस्ती चढ़ जाएगी। 2-4 मिनट सुस्ते किसी को सुनते रहोगे फिर नींद सी आ जाती है। तो इसलिए हाथ का मूवमेंट करो, थोड़ा सा अंगूठा ऊपर नीचे करो, थोड़ा सा कंधे ऊपर नीचे करो, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई हम एक्टिव चल रहे हैं, मतलब सुस्ती नहीं चढ़ेगी। ओके, सो तो ये तो तय हो गया कि भाई अगर हमारे को प्रेम चाहिए, धन चाहिए और से अच्छी सेहत चाहिए, ऊर्जा सबसे बढ़िया हमारी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी ऊर्जा बड़ी होगी तो अच्छी सेहत मिलेगी, आपको मिलेगी ना? ट्रू। ऊर्जा बड़ी होगी तभी अच्छी सेहत मिलेगी। ओके, अच्छा, ऊर्जा बड़ी होगी तभी सब आपको प्रेम करेंगे, आपके पास आने से सबको अच्छा लगेगा। भाई आपके साथ बैठ के अरे सबको अपलिफ्टेड महसूस होगा, सबको अच्छा सा लगेगा, है ना? तो ये भी काम होगा। और आप अगर काम करने में जाओगे तो ऐसे जोश से जा रहे हो काम करने के लिए, पूरी उमंग के साथ जा रहे हो। अब जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लग रहा है ना कहीं भैया ऊर्जा बढ़ी हुई है। अगर हम ऐसे बात करें, हाँ जी देखो भैया खुशी तो चाहिए, ले लो मिल जाएगी, अच्छा होता है। बोले यार क्या इसके पास खुद तो खुशी है नहीं, हमारे को क्या खुश रहना सिखाएंगे? खुद तो ऊर्जा है नहीं, हमारे को क्या ऊर्जा बढ़ा दिखाना सिखाएंगे? ठीक है ना? तो ऊर्जा बड़ी होने से ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जीवन के सारे रास्ते ही खुलेंगे ऊर्जा मिलने से। ठीक है जी, ये तो हो गया टेम्परेरी सुख के लिए। ठीक है कि भाई टेम्परेरी सुख के लिए ऊर्जा चाहिए जिससे हमारी सेहत बढ़िया हो जाए, पैसे वैसे भी हो और प्रेम करने वाले लोग भी आसपास में हो। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अभी परमानेंट सुख चाहिए तो क्या चाहिए? ठीक है, अब परमानेंट सुख पाने के लिए तो हमारे को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। बिना ये जाने, बिना ये पहचाने, हमने सुना तो हुआ देखो भैया सबके अंदर ईश्वर है, वी ऑल हैव हर्ड, you know, in India especially everybody knows where is God. They say God is everywhere, God is in everybody's heart also. ठीक है, अब ढूंढते कहाँ हैं भगवान को? मंदिरों में जाके। you know, we always are searching for divinity, going and क्या, अच्छा जितना हम चंदन रगड़ेंगे हो सकता है भगवान उतना मिल जाए, जितना टीका लगा लेंगे, भस्म लगा लेंगे, you know, we think that okay with this मिल जाएगा हमारे को, प्रसाद चढ़ाने से मिल जाएगा हमारे को। अरे कबीर भी बोले ना, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं तो पहाड़ को पूजूं, वहां से थोड़ी मिले क्या, किसी को पूछो जाके। you know, ask everybody, ask the pandits who have been doing it throughout their life, have they found God, have they experienced God or divinity? वो तो पूरा टाइम 24 घंटे मंदिर में पड़े हुए हैं, मंत्र बोलते रहते हैं, उससे थोड़ी मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? अपने पास में मिलेंगे, जहां पर है वहां जाने से मिलेंगे ना। तुम वहां जाओगे नहीं तो कहां से मिलेंगे भाई? जिधर है ईश्वर वहां तो तुम ढूंढ नहीं रहे हो, सब जगह है, लेकिन जहां चाहिए वहां तो नहीं मिलेंगे तुम्हारे को। हम आपको एक कहानी बताते हैं, कहानी चलेगी ना, छोटी सी कहानी है ना। सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज दिस ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला थी। तो वो अपने मथुरा की, अनुराग जी अभी मथुरा में है तो वो भी मथुरा में ही थी। तो मथुरा में ना वहां पे लाइट जली थी रोड के ऊपर, देयर वाज अ लैम्प, बिग लैम्प, एंड शी वाज सर्चिंग फॉर समथिंग। सो एक सज्जन आए, बढ़िया थे भाई, मथुरा में तो बड़े अच्छे अच्छे सज्जन हैं, सब ईश्वर को समझते हैं, सब प्रभु हैं वहां पे। तो इसने बोला देवी आप क्या ढूंढ रही हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी एक हीरे की अंगूठी खो गई है, यू नो आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग। सेड ओह लेट्स फाइंड, हम भी ढूंढते हैं आपके साथ देवी, ये तो पुण्य का काम है, चलो ढूंढते हैं। सो ही स्टार्टेड लुकिंग, देन और साथ में जुड़ गए 4-5 10-15 10-15-20 people joined. Then like they could not find, they have searched every bit of it. Then they asked, where exactly have you dropped it? खोई कहाँ थी? बोलती वो तो मेरे घर में खोई है।
बोले अरे माँ, तेरे घर में अंगूठी खोई है तो तू यहाँ पे रोड पे क्यों ढूंढ रही है? कह रही मेरे घर में ना अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है तो मैं इसलिए यहाँ लाइट में ढूंढ रही हूँ। यू नो, सो तुम कहाँ और हम भी कहाँ ढूंढ रहे हैं उस ईश्वर को, उस अपने आप को लोगों के बीच में, कि भाई मंदिरों के बीच में अपने क्या कहते हैं वो उसको चंदन घर जिसके के प्रसाद बांट 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 के। अरे भाई वो है कहाँ? तुम कहाँ हो? तुम तो अंदर हो, अपने अंदर। और जब तक अपने पास नहीं बैठोगे, अंदर नहीं जाओगे, मिलेगा कहाँ? पूरी जिंदगी क्या, हजारों जिंदगी ढूंढते रहो, जहां पे है नहीं तो मिलेगा कहाँ पे वहां पे? पर है कहाँ पे? तुम्हारे अंदर, है ना सभी। और उसके लिए भीतर जाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू गो इनसाइड, यू नो। और खुशी भी चाहिए। बिना खुशी के लिए दुखी दुखी अंदर जाओगे तो कुछ तब भी नहीं मिलेगा। तो खुश होके ऊर्जा बड़ी होगी जब तुम्हारी, तभी अंदर जाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। बोलते हैं ना, रॉकेट के अंदर जितनी ऊर्जा होगी उतना ऊपर जाएगा वो। वरना हम ये सोचते हैं अच्छा चलो भाई ईश्वर का नाम अपने आप को पहचानने के लिए, जब सब खत्म हो जाएगा, मीन जब कुछ काम करने को नहीं बचेगा, जब जीवन में कुछ रह ही नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भी नहीं होगी, तब ईश्वर को ढूंढेंगे। तब ईश्वर थोड़ी मिलेंगे, तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं है वहां जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, अपने अंदर बैठने के लिए भी बड़ी ऊर्जा चाहिए। और जितना अंदर जाना हो उतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और तो ऊर्जा के बिना तो विदाउट एनर्जी you are not going to achieve anything, that's for sure. So and now, okay, everything comes okay for two things. First thing, how to find energy, कैसे ढूंढे हम, कैसे पाए ऊर्जा, कैसे पाए? तो ऊर्जा पाने के लिए 4 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? दिखाओ मेरे को उंगलियां, कितने उपाय? 4, ठीक है। तो पहला है भोजन, जो सबको पता है भाई। और अभी तो आजकल तो यही चल रहा है, क्या पकोड़े, है ना, लस्सी, चाय, हर आधे घंटे में चाहिए होती है। एक चाय मिल जाए बढ़िया सी गर्मा गर्म, और साथ में कभी बरसात वरसात आ जाए तो पकोड़े, है ना, कुछ थोड़ी ठंड लग जाए तो साथ में कुछ और बिस्किट, फिर ये सब चलता रहता है। तो आपको जान के ये हैरानी होगी, यू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, more than 70% of the time if our energy is down is because of food. खाने की वजह से हमारी ऊर्जा डाउन होती है 70% से ज्यादा। क्यों? अच्छा खाने के भी ना, अच्छा ये भी हमारे को कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। खाने के भी 3 वो होते हैं, 3 एक्सपीरियंसेस और 3 किस्म जो असर बोलते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक, है ना। तो सात्विक खाना क्या होता है? सात्विक खाना, सात्विक फूड इज व्हेन यू फील कंफर्टेबल, लाइट, सेंटर्ड, एनर्जेटिक, है ना, अच्छा लगता है खाना खाने के बाद, ठीक लग रहा है, मजा आ गया, यू नो। द अदर type of food is rajasic. What happens after that? You feel like energetic, you know. अच्छा एनर्जेटी भी, ये ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है शारीरिक, बायोलॉजिकल, एक होता है मेंटल, जिसको प्राणा बोलते हैं ना। ऊर्जा भी जैसे, अब ये जो शारीरिक ऊर्जा है ये तो खाने से किसे मिल जाएगी, हर चीज में होती है। लेकिन जो मानसिक ऊर्जा है, जिसको प्राण भी बोलते हैं, है ना, इसको सटल लाइफ फोर्स एनर्जी भी बोलते हैं, ये हर जगह है, ठीक है। पर कहीं जगह कम है, कहीं जगह बड़ा ज्यादा है। तो अभी जो तुम राजसिक भोजन करते हो तो शरीर को तो ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन मन पे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो शरीर रेस्टलेस हो जाता है। यू नो, यू फील सो रेस्टलेस, एंजाइटी, फियर, दिस ऑल आर अ पार्ट। जैसे अभी बोलते हैं कोई लोग कॉफी वॉफी पीते हैं, है ना, तो कॉफी में कैफीन होती है, तुरंत पीते ही एकदम ऊर्जा से भर जाते हो, नींद नहीं आती है, लेकिन मन शांत थोड़ी होता उससे। ये देखो ये आए हमारे, मिलिए, ये 3 कुत्ते आए हैं बड़े बड़े, और ये कभी भी आ जाते हैं, और बस अब आके क्या करेंगे, अभी कभी मुंह यहाँ पे रख देंगे, कभी मुंह यहाँ रख देंगे। ओके ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, राजसिक भोजन के बारे में। तो जैसे आपने चॉकलेट खा ली, शुगर खा लिया, ठीक है,
चॉकलेट, केक, कोई भी मीठा चीज खाया तो रजस तो बढ़ गया, शरीर ऊर्जा से बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, इस वक्त लॉकडाउन के टाइम में जितनी आपने शुगर खाई, शुगर से भर के कोई चीज खाई, जितनी कॉफी शॉफी पी, कैफीन वाली चीज कोई भी पी ली आपने या खा ली आपने, अब क्या है, अब भागने दौड़ने के लिए कोई मैदान तो है नहीं है, वही 2-4 कमरे हैं, उसी के अंदर आपको सारा कुछ करना है। अब ये ऊर्जा आपको काटेगी, क्योंकि आपने इसको, बढ़ तो गई है, आप यूटिलाइज नहीं की। तो ये राजसिक भोजन का असर होता है। जितना आप तेल, मसाले, मीठा ये खाओगे तो रजस बढ़ जाएगा, और रजस को शांत किए बिना आपको शांति नहीं मिलने वाली। बात समझ में आ रही है ये, है ना? तो राजसिक भोजन हो गया। फिर तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन कैसा होता है कि भाई पुराना भोजन, पुराना भोजन और पैकेज्ड, डब्बों वाला खाना, ठीक है, प्रोसेस्ड खाना। फिर नॉन वेजिटेरियन खाना, वो तो खैर यहाँ पे मथुरा में तो खैर कुछ होगा नहीं वैसा, लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है इसमें तामसिक, कि जैसे अभी सपोज करो 2 केले हैं, 2 बनानास आर देयर, 1 फ्रेश बनाना एंड 1 सॉगी बनाना जो थोड़ा सा पुराना हो गया। तो आप पुराना केला भी खा सकते हो, आपका पेट की अग्नि शांत हो जाएगी, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन कुछ उसमें गायब है जो फ्रेश बनाना में है, व्हिच इज देयर इन द फ्रेश बनाना। नाउ दैट इज प्राणा। जैसे कोई सब्जी काटी आपने, सब्जी काटी या फ्रूट काटा, आफ्टर कटिंग ए फ्रूट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, इट बिकम्स डिफरेंट। वो उसके अंदर से वो प्राण चला जाता है, आपको शारीरिक ऊर्जा मिल जाएगी लेकिन प्राण चला जाएगा उसके अंदर से। तो वो प्राण क्या, मानसिक ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो आपने जितना खाया तो वो आपकी जो बची कुची ऊर्जा उसको भी डुबा देगी। तभी आपको क्या होता है, मन नहीं करता कुछ करने का, बैठे रहते हो, सुस्ती चढ़ी होगी है, डिप्रेशन आ गया, नेगेटिविटी चढ़ जाती है, सब कुछ खराब लग रहा होता है, हर चीज में नुक्स ढूंढ रहे होते हैं। होता है ना कभी कभार हमारा को ऐसा। तो हम ये तीनों चीजों में आगे पीछे जाते रहते हैं, कभी सात्विक ऊर्जा बढ़ी होगी, कभी राजसिक बढ़ी होगी, कभी तामसिक बढ़ी होगी। तो ये, अच्छा, अब ये तो हो गया भोजन, थोड़ा सा भोजन ढंग से खाया। और अच्छा, किस किस चीजों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में है, शाकाहारी भोजन भी आपको तामसिक की ओर ले जाता है। कैसे? जैसे आपको बताएं, बैंगन, बैंगन के अंदर आयरन कंटेंट बहुत है, मेडिसिनल वैल्यू बड़ी अच्छी है, बट ऊर्जा के लिए वो घातक है। शरीर के लिए ठीक है, आयरन मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा तुम्हारी वो नीचे डुबा देगा। अब ऐसे ही ये है अपना प्याज लहसुन है। प्याज लहसुन तो मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन ऊर्जा आपकी डुबा देगा। अभी जैसे आप देखो डिप्रेशन में ना, कितने लोग बॉडी बिल्डर होंगे, वेट लिफ्टर होंगे, शरीर तो उनका इतना तगड़ा है, लेकिन डिप्रेशन के शिकार है। क्या? मानसिक ऊर्जा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर Correct. हमारे को जीवन में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, तो वो मानसिक ऊर्जा से आएगा, ज्यादा भोजन करने से नहीं आएगा। भोजन करने से तो फिर लड़ाई झगड़ा ही करते रहोगे, किससे मैं झगड़ूं, किससे मैं मनमुटाव करूं, कौन बुरा है, यही करते रहोगे, ठीक है ना? तो सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन, तो ये आपको भोजन भी देखना पड़ेगा। और स्पेशली अभी आप जब लोग घर पे हो, तो स्पेशली रात का खाना तो एकदम ऐसा खाना है कि मानो हमारे को किसी ने भोजन, हम भिखारी की तरह। क्योंकि अगर आपने जहां राजा की तरह खाया, ना आप कहीं घूमने जा रहे हो, ना आप कोई बड़ा अच्छा सा व्यायाम कर रहे हो, पचाओगे कैसे उतना खाना? और पचाओगे नहीं तो क्या, इधर उधर ही लग जाएगा। फिर बोलोगे देखो भाई, अभी तो पहले तो हमारी कमर थी, अब वो भी कमरा हो गई है ना? होता है ना कभी कभार। तो अब ये, इसके लिए हमारे को रात को स्पेशली उतना ही भोजन करना है जितना हम सोने से पहले पचा पाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भोजन। फिर दूसरा क्या है, सोना। अभी देखो ये भी आजकल बिगड़ा पड़ा है। बोलते हैं आजकल क्या चीज चल रही है, बोले ट्रायंगल। ट्रायंगल है हमारा, कहाँ का ट्रायंगल है जी? एक तो किचन जाते हैं रेगुलर, ठीक है जी, दूसरा बेड के ऊपर, और तीसरा टेलीविजन या फोन। तो ये ट्रायंगल में ही फंसे हुए हैं, इधर से नहीं तो उधर, उधर से नहीं तो इधर, इधर से नहीं तो, यही चलता रहता है। अभी और कुछ नहीं है तो सो जाओ। अच्छा, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप, वैसे ये सारी चीजें जो है हमारे हैप्पीनेस कोर्स की पॉइंट की हैं, लेकिन
इसके बिना तो मजा ही नहीं आता। तो हम आपको सब बता रहे हैं, गहराई में तब अनुभव होगा जब आप हैप्पीनेस को करोगे। अभी जैसे ये सोना भी, अगर जब छुट्टी होती है या अभी आजकल आप देख रहे हो ज्यादा सो रहे हो तो ऊर्जा से थोड़ी बढ़ रहे हो भाई, सोने से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो मतलब ज्यादा सोने से ज्यादा मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ज्यादा सोने से और ऊर्जा पूरा दिन लटका रहता है, मुंह ढीला, कुछ उमंग नहीं आ रही, क्यों? अब कुछ नहीं है तो सो गए, अब एक बार सोए तो सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता तो फिर उसके बाद उसी तरह पड़े रहते हैं, पूरा दिन ऐसी तरह निकल जाता है, ठीक है। तो जितना कितना सोना, अच्छा आप सबको पता है कि आपको कितने घंटे नींद चाहिए, बोलते हैं ना यार मेरे को इतने घंटे नींद मिल जाए, इफ आई गेट दिस मेनी आवर्स ऑफ स्लीप आई एम हैप्पी। Some need 6, some need 7, some need 8. Okay, how many of you are happy if you get 6 hours of sleep? हाथ खड़ा करो जरा, दिखाओ। 6 घंटे मिल जाए तो कितने लोग तृप्त हो जाते हैं? ओके, अच्छा अब ये बताओ, how many of you are happy when you get 7 hours of sleep? 7 घंटे तो चाहिए भाई, अगर 7 घंटे मिल जाए तो अच्छा, हाथ खड़ा करो। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने लोगों को 8 घंटे से कम में गुजारा नहीं है? भाई 8 घंटे तो चाहिए। कितने लोगों को चाहिए 8 घंटे? खड़े करो जरा। अच्छा इसमें ये नहीं है कि भाई जिसको 6 घंटे में खुश है तो वो थोड़े ज्यादा चैंपियन हो गए और हमें 8 घंटे चाहिए तो हम कम चैंपियन है। ये सब शरीर की बनावट के ऊपर निर्भर करता है। हम सबका शरीर अलग है, तो जिसका जैसा शरीर उसका वैसा जरूरत। तो जितना अगर आपका 8 घंटे है तो वो अच्छा है, आपको पता है कि मेरे शरीर को 8 घंटे से खुशी हो जाती है, मतलब अच्छा लगता है, तो बस उतना ही सोना आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपने इफ यू इंक्रीज इवन 1 आवर एक्स्ट्रा और हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, मतलब कि आपने 3 से 4 घंटे अपने आप को और पानी में डुबो दिया, ठीक है, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्लीप भी चाहिए होती है। अच्छा खाने और सोने में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब बाकी 2 और चीजें क्या है जो अनलिमिटेड जोन है, मतलब जितना आप उसको बढ़ाओगे उतना ही ऊर्जा से भर जाओगे। तो वो क्या है जी? पहली चीज सांस, है ना। अब बिना सांस के तो जीवन है नहीं। आप खाना खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हो, पीने के बिना रह सकते हो, सांस के बिना कितना टाइम रहोगे भाई? 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हो। तो सांस से बढ़िया तो ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अच्छा सांस से क्या है, बॉडी को तो ऑक्सीजन मिल रही है, मन को प्राण मिल रहा है, सांस के अंदर दोनों है ना। अब सांस भी, अब आपको पता है कि नॉर्मली में हम कितना % सांस लेते हैं? केवल 30%, ओनली 30% ऑफ आवर कैपेसिटी, है ना। और 90% टॉक्सिन्स, 90% से ज्यादा शरीर के अंदर के जो विकार हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सांस से निकलते हैं। तो तभी लोग को अगर सांस लेना ढंग से आ जाए तो सेहत तो गिफ्ट में मिला ही मिला, ऊर्जा भी बढ़ गई, है ना। तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास चल के आएगा, है ना। अगर आपको सांस के इतने सीक्रेट्स हैं, आपको बताएं हम, कि अगर आपको केवल सांस के सीक्रेट पता चल जाए तो आपका जीवन तर गया, योर लाइफ इज डन, यू नो, बिकॉज ब्रेथ इज द थ्रेड बिटवीन योर आउटर वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड। आपको जीवन के लिए सांस चाहिए, अंदर जाने के लिए भी सांस चाहिए, आपको मन पे काबू पाने के लिए भी सांस चाहिए। मन के ऊपर हम पूरी दुनिया काबू पाना चाहती है, सब चाहते हैं भाई हमारे मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर काबू पा जाए, गुस्सा ना आए हमारे को, और हमारे को चिड़चिड़ापन ना आए, खुशी रहे। वो जब तक आपको ये मन को काबू पाना नहीं सीखोगे, जब तक तो वो संभव ही नहीं है। डू ऑल एग्री करते हो? बिना मन को काबू पाए आपके पास कुछ जीवन में नहीं प्राप्त होगा, चाहे बाहर के जगत में चाहे अंदर के जगत में। अच्छा अब आपको बताएं, इसके द थ्रेड, ये जो है ना, मन जो है पतंग की तरह है, तो इसका धागा जो है वो है सांस। जैसे गुस्सा अगर आपको आता है तो कैसा सांस चल रहा होता है? बड़ा तेज। अगर आपको तेज सांस नहीं लोगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। करके देख लो, कभी ट्राई करने का मन करे तो देख लो, अगर आपका सांस नहीं तेज चलेगा तो गुस्सा भी नहीं आएगा आपको।
ठीक है। और अच्छा ऐसे ही अगर ये जैसे कभी हम बड़े थके हारे होते हैं, बड़ा भारीपन लग रहा होता है, तो कैसे सांस चल रही होती है? बड़ी भारी। बाहर जाने वाली सांस बड़ी भारी चल रही होती है। अच्छा कभी खुशी होती है, मजा आ रहा होता है, तो कैसे? अंदर आने वाली सांस बड़ी प्रोमिनेंट होती है। मजा आ गया। नहीं महसूस किया आपने कभी? है ना? तो सांस में ये सारे सीक्रेट आपके छुपे हुए हैं। अगर आपने सांस पे काबू पा लिया तो आपका मन के जगत पे काबू पाना तय है। और तीसरा क्या है? अच्छा चौथा, ठीक है, ये तो हो गया खाना, दूसरा हो गया आपका सोना, तीसरा हो गया सांस। तो ऐसे ही कुछ लय होती है, हर भावना के पीछे लय है। इसी तरह तुम्हारे मन की भी लय है, और अगर जितना आपको अंदर जाना है उतना आपको वो लय पकड़नी पड़ेगी। देयर इज अ रिदम, एंड इफ यू नो द रिदम ऑफ योर ब्रेथ यू कैन रीच टू योरसेल्फ। परमात्मा तक, आत्मा तक पाने के लिए भी वो लय चाहिए। और सुदर्शन क्रिया क्या है? आप सबने सुदर्शन क्रिया सुना ही होगा। सुदर्शन क्रिया वो लय ही है कि वो लयबद्ध आपकी एक सांस लेने की प्रक्रिया, जो ना केवल आपके मन को साफ कर देती है, एक एक शरीर से, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक अणु से जो भी टॉक्सिन्स और वो खींच के कर देती है, बल्कि आपको आपका आत्म साक्षात्कार भी करवा देती है। तो अगर आपको एक चीज चाहिए जो आपको बाहर के जगत के लिए भी और अंदर के जगत के लिए भी, ईश्वर को पाने के लिए भी, अपने आप को पाने के लिए भी, तो वो सुदर्शन क्रिया है। अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। भाई हमें चाहिए नहीं ईश्वर, हमें चाहिए नहीं खुशी, तो बिल्कुल मत सीखना। अगर चाहिए तो इससे सरल, भाई लोगों तो मिलते हैं, ये नहीं है कि भाई अगर आपने सुदर्शन क्रिया नहीं की तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। जन्मों लग सकते हैं पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी चाहिए तो बड़ी जल्दी में तो ये इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अच्छा और चौथा क्या है? ध्यान। जैसे आपने ध्यान किया तो क्या हो गया? ध्यान में भी, अच्छा ध्यान भी क्या, पहले तो अपने बाहर के वातावरण से हम उलझे रहते हैं, उसमें से निकले तो फिर शरीर में अटक गए, उसमें से निकले तो मन में अटक गए। तो ध्यान का मतलब क्या? जब आप इन तीनों चीजों के परे जा पाओ, कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा स्किल, इफ इट टेक्स यू बियॉन्ड ऑल दिस थिंग, देन आपका ध्यान लगा, ठीक है। और वो ध्यान पाने से आप ऑलरेडी ऊर्जा से भर गए, मतलब ध्यान हो गया तो ऊर्जा से भर भी गए, ध्यान हो गया तो मन भी शांत हो गया, ध्यान हो गया तो थोड़ा सा अपना झलक भी मिल गया। तो करना चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी सांस, कुछ प्रैक्टिस करें। देखो बड़ा तो नहीं कर सकते, सुदर्शन क्रिया तो नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको 8 घंटे चाहिए, मास्टरी प्राप्त करने के लिए 8 घंटे चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो चलो फिर क्या करते हैं, शरीर को शुरू करते हैं। थोड़ा शरीर को झाड़ो जरा, ठीक है, शरीर को झाड़ो 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 झाड़ो, बिना झाड़े तो काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा बाएं को भी झाड़ो, थोड़ा सा दाएं को भी झाड़ो, थोड़ा सा ऊपर को भी झाड़ो। अभी मान लो यही टेक्निक है ध्यान करने की, अभी आपको आधे घंटे ऐसे ही करते रहना है, तो देखो कितना मजा आने वाला है ना। नीचे भी झाड़ो। अच्छा अभी जरा बैठे बैठे जो है वो करो, बैठे बैठे जरा लस्सी बनाओ, बढ़िया से बैठे बैठे लस्सी बनाओ। अच्छा पूरी पीठ को भी, कंधे को भी ऊपर खींचो, है ना। आपका स्पाइन जितना खींचेगा उतना ही मजा आएगा। जरा पूरा अच्छी तरह से स्पाइन को शेक करो बढ़िया से। ओके अभी क्या करो, कंधे को ऊपर ले जाओ और अपनी पीठ को और खींचो ऊपर, जितना खींच सकते हो उतना खींचो और छोड़ दो। अभी एक और बार ऊपर, छोड़ दो। अब थोड़ा सा दाहिने हाथ को बाएं घुटने पे रख के जरा बाएं ओर से पीछे देखो कौन कौन है, क्या क्या है, जरा देखो पीछे और अच्छे से मुड़ो। अभी सामने आ जाओ। अभी दूसरी जगह पीछे से दूसरी तरफ से मुड़ के देखो, हर पीछे की चीज और मुड़ जरा, पीठ को सीधा रखो और ट्विस्ट करो। आ जाओ अभी सीधा। अभी जरा थोड़ा सा बाएं तरफ को जाओ,
और थोड़ा दाईं तरफ को जाओ। हाँ, अभी विश्राम के साथ बैठ जाओ। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं थोड़ी सी। तो इसको क्या करते हैं, अंगूठे को ना, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अंगूठे को दाईं नासिका पे रखें, तर्जनी मध्यमा को दोनों भुवों के बीच में, और अंगूठी और छोटी उंगली को बाईं नासिका पे रखें। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे भी कर सकते हो खोल के, और दूसरा तर्जनी और मध्यमा को दोनों भुवों के बीच में, जहां पे हमारे जहाँ तिलक लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, क्या यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को। तो अगर आप जैसे इसको छोटा सा छूते हैं ना हल्का सा, तो इससे वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो आप करें जरा इसको, ये पोजीशन में पहले दाईं नासिका को बंद करके बाईं से सांस छोड़े। क्लोज योर राइट एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट, देन ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट, close the left, breathe out from the right, then breathe in from the right, close the right, breathe out from the left. Now this is one round. तो अभी 5-6 राउंड और करते हैं. We'll do 5-6 more rounds, keeping your eyes closed. आंखें बंद करके take long deep breath in and slowly breathe out from the other nostril. दूसरी नासिका से सांस छोड़े. इस क्रम को चालू रखें. Take long deep breaths in from one nostril and slowly breathe out from the other. Keep your spine erect. पीठ को सीधी रखें. और जितनी गहरी सांस लेंगे उतना अच्छा है. The longer you inhale, the better it is. And slowly breathe out. बहुत धीरे से सांस छोड़ें दूसरी नासिका से. चालू रखें. सारा ध्यान सांस पे. All your attention is on the breath. और राउंड खत्म करने पे विश्राम करें. आंखें बंद करके थोड़ा सा मन की स्थिति को अनुभव करें. जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, द कामनेस एंड कूलनेस इन द माइंड. ओके, तो अभी दूसरी प्रक्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं भस्त्रिका, है ना. तो उसमें क्या करना है, ढीली मुट्ठी कंधों के सामने रख लेते हैं. तो सांस लेने पे हमें क्या करना है, जोर से सांस लेनी है और हाथों को ऊपर ले जाना है तो उंगलियां खुल जाएंगी. और सांस जोर से नीचे छोड़नी है और वापस हाथ मुट्ठी जो है कंधों के आगे आ जाएगी. अच्छा, जिसको थोड़ा सा भी हार्ट का इश्यूज है या ब्लड प्रेशर का है वो थोड़ा आराम से करें, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करें, पर सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, तो तैयार हो जाए. सांस पूरी एक सांस लेके सांस छोड़े. पहले अभी भस्त्रिका करने के लिए सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, सांस अंदर बाहर, आंखें बंद, बाहर, अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, मुट्ठी को खुली बंद, मुट्ठी खुली बंद, हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. और विश्राम करें. आंखें बंद. महसूस करें इस ऊर्जा को हाथों में, शरीर में. Observe the energy in the body, in the mind, and calmness in the mind. मन की शांति को भी अनुभव करें. सेकेंड राउंड के लिए पोजीशन ले लें. टेक पोजीशन. कीप योर आइज क्लोज नाउ. अभी आपको पता है भस्त्रिका कैसे करनी है. नाउ कीप योर आइज क्लोज. आंखें बंद रखें. एक साधारण सांस लें
और पूरी तरह से छोड़ के फेफड़ों को एकदम खाली कर दें. एम्प्टी योर लंग्स कंप्लीटली. नाउ टुगेदर, एक साथ सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट. सांस अंदर बाहर, नाक से अंदर, नाक से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. और विश्राम करें. आंखें बंद. महसूस करें इस ऊर्जा को, महसूस करें मन की शांति को. और तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं. नीली मुट्ठी कंधों के आगे. अच्छा, नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है. मुंह से नहीं लेना सांस, ना मुंह से छोड़ना है. ठीक है. अच्छा, आपकी कोहनियां जो है बगल को छूती हुई, कोहनी हवा में नहीं, कोहनी बगल को छूती हुई रहनी चाहिए. वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हम, भस्त्रिका कर रहे हैं. तो एक साधारण सांस लें और पूरी तरह से छोड़ें. और एक साथ सांस अंदर बाहर, हाथ ऊपर नीचे, सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, 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 इन आउट. सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. विश्राम करें. हथेली घुटनों पे या जांघों पे, छत की ओर खुली हुई, आंखें बंद. हाथ आपके पांव पे हैं. Your hands are on your thighs or the knees. अब महसूस करें इस ऊर्जा को. ऑब्जर्व द एनर्जी, ऑब्जर्व योर माइंड. और मन की शांति को भी अनुभव करें. और एक गहरी सांस लें और छोड़ें. आंखें बंद रखें. पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले. Take another deep breath in and exhale. और सांस छोड़ें. Incoming breath energizes the body and outgoing breath relaxes the body. अंदर आने वाली सांस ऊर्जा देती है और बाहर जाने वाली विश्राम. तो हर बाहर जाने वाली सांस के साथ शरीर को और विश्राम दें. With every exhalation, relax more and more. Now become aware of your surroundings. अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं. जो भी आवाजें हैं वातावरण में, उसको सुन लें और स्वीकार कर लें. Whatever noises you can hear, accept all the noises in the surroundings. Breathe in, सांस लें, and slowly breathe out. और धीरे से सांस छोड़ें.
Become aware of your body. शरीर के प्रति सजग हो जाए. This body is a precious gift by divine, by nature. ये शरीर ईश्वर की, प्रकृति की एक अनमोल देन है. Let's take good care of it. इसका ख्याल रखें. Become aware of your feet. पाँव के प्रति सजग हो जाएं. Knees, घुटने के प्रति. Don't need to move it. Just become aware. हिलाना नहीं है, just सजग रहना है. Thighs and hips. जांघें, कूल्हे. Genitals, जननेंद्रियां. Abdomen, आंतें. Stomach, पेट. छाती, chest. Arms and shoulders, हाथ और कंधे. Throat, गर्दन. Face, मुंह. Top of the head, सर का चोटी. And your whole body, पूरा शरीर. Relax your whole body, पूरा शरीर. Your whole body, पूरा शरीर. सांस लें, breathe in and exhale और छोड़ दें. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए. Good thoughts or bad thoughts. अच्छे विचार या बुरे विचार. Do not resist any thoughts. किसी विचारों को ना रोकें, आने दें. Your thoughts are like clouds. विचार तो जैसे बादल हैं. It comes and goes. Let them go. वो आते हैं और जाते हैं, उनको जाने दें.
Breathe in and breathe out, और सांस छोड़ें. Become aware of your feelings. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो. प्लेजेंट फीलिंग्स और अनप्लेजेंट फीलिंग्स, सुखद भावना या दुखद भावना. Do not resist any feeling. किसी भावना को ना रोके. Accept your feelings and become one with your feelings. भावनाओं को स्वीकार करें और भावना के साथ एक हो जाएं. You are peace. You are joy. आप स्वयं ही शांति हैं, स्वयं ही आनंद है. ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. Become aware of your feelings if there is any. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं अगर कुछ है तो.
Become aware of your thoughts इस तरह नहीं, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए अगर कुछ है तो। Become aware of your body, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। Become aware of your surroundings, वातावरण के प्रति सजग हो जाए। और एक गहरी सांस लें, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, और सांस छोड़ें और छोड़ें, एक्सेल। और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब सुखी हो, पूरे विश्व में सभी सुखी हो, सब प्राणी जीव जंतु सब सुखी हो। Have this feeling that everybody in this planet may be happy. और इस शुभकामना के साथ जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। And with this feeling, you can, whenever you feel complete, you may open your eyes. अभी कैसा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? अभी हाथ अंगूठा दिखाएं हमारे को। अभी तो मन ही नहीं कर रहा है ना, अभी लगता है कुछ देर और बैठे रहे। अभी तो कितना अच्छा लग रहा है ना? सबको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब बस अब यही भाव हमारे को रोज चाहिए। नहीं चाहेंगे कि आप कि इस आनंद की स्थिति में, इस शांति की स्थिति हमारे को रोज अनुभव हो। देखो अभी तो मिल गया, अभी तो अनुराग जी हैं, इतने सारे टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो सब लोगों ने आपको बोल बोल के किसी तरह से कहा कि नहीं भाई आप बैठे जाके टॉक में जाओ और कर लो। लेकिन अगर आपको रोज चाहिए तो फिर तो आपको ये सीखनी पड़ेगी ना कला। और यही चीज आ गई जीवन जीने। तभी तो जीवन जीने की कला क्या होता है? जीवन क्या है भाई? सुख और आनंद ही तो है। अगर सुख और आनंद नहीं मिलेगा तो कौन जीना चाहेगा? और जीवन जीने की कला क्या है कि सुख और आनंद को हम कैसे जब चाहें तैसे प्राप्त कर लें। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? अच्छा, सबको चाहिए नहीं? अच्छा ये तो बताओ, रोज चाहिए ऐसी भावना ना? किस बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो अंगूठा दिखाओ ना। आप देखो अगर इसमें भी कंजूसी करोगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ ठीक। तो देखो 3 बाधाएं आती हैं। आपको कोई भी शुभ काम, कोई गलत काम करना तो कोई बाधा नहीं है। किसी से झगड़ा करना है, किसी से मनमुटाव करना है, किसी से कुछ करना है, फटाक से फोन उठाओगे तुरंत कर डालोगे। लेकिन कोई भी अच्छा काम करने जाते हो ना तो 3 बाधाएं आती हैं। ठीक है? और पहली क्या है जी? पहली बाधा जी, समय नहीं है हमारे पास। तो कोई भी अच्छा काम करने को बोलो समय नहीं है। अभी तो आप ये बोल नहीं सकते, ठीक है जी, समय नहीं है। अभी अगर कोई आप किसी को बोलोगे जी हमारे पास तो समय नहीं है जी, तो वो बिल्कुल आपको बोलेगा देखो भाई ये तो कुछ, अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। ठीक है? तो दूसरी चीज क्या आती है? अरे भाई देखो हमारे को तो ऐसी सारी चीजें जो है वो फ्री में मिलनी चाहिए। देखो ध्यान व्यान करने का तो फ्री में मिल गया, लेकिन कोई चीज सीखनी है ना, ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। और ये तो दक्षिणा ऐसी है, इससे तो समाज का इतना कल्याण हो रहा है, इतने लोगों को शिक्षा मिल रही है, इतने लोगों को भोजन प्राप्त हो रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा काम होता है। ठीक है? और इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है? बोले पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन ये समय नहीं आने वाला। ये समय अगर आपने गवा दिया तो फिर सालों ढूंढोगे ऐसा समय प्राप्त करने के लिए। पैसा तो क्या है, फिर कभी आ जाएगा। और देखो आपने कितना पैसा जूते खरीदने में, भाई जूते खरीदने में, कपड़े खरीदने में, ये खरीदने में, किस लिए वो पैसा क्यों खर्च करते हो? खुशी पाने के लिए ना। पर खुशी कहाँ मिलती है? वो उस वक्त पाली, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको आपसे जोड़ दे, तो उसमें बिल्कुल इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप, और ये पूरे जीवन भर की है भाई। आपने एक बार सीख ली तो आपके साथ जीवन भर रहने वाली है।
और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी परेशानी, अजी हमें जरूरत ही नहीं है जी, हम तो वैसे ही ठीक रहते हैं, ये बाकी लोग को जरूरत है, देखो पड़ोसियों को चाहिए, वो देखो बेचारे दुखी रहते हैं, घर वालों को दे दो, ये सुखी हो जाएंगे तो जी मेरा तो काम हो गया, इनको चाहिए मुझे नहीं चाहिए। देखो जीवन में कितने क्षण ऐसे हमने गवाए होंगे जब हम दुखी होंगे और हमें पता नहीं इससे ऊपर कैसे प्राप्त कर पाए। और ये एक इतना बढ़िया मौका है जो आप इससे बढ़िया गिफ्ट अपने आप को नहीं दे सकते हो, अपने परिवार वालों को नहीं दे सकते हो। देखो घर में पेरेंट्स हैं, अब आपको, आप चाहते हो उनको, इन्होंने पूरे जीवन भर हमारे को इतना दिया है, अब उनको हम क्या गिफ्ट दें। देखो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज आप दे सकते हो वो है सेहत की, ठीक है, और सेहत की इम्यूनिटी से बढ़ने, और इसका मेडिकल इतने, अभी आप नेट पे जाओगे तो इतनी चीजें मिल जाएगी मेडिकल की कि कितना उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका केवल 1 महीने में 25% से ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर आप अपने परिवार वालों को, पेरेंट्स को कुछ बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हो, तो इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता जिससे आपने उनको सेहत का गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी किसी चीज में संकोच नहीं करो और जल्दी करना। देखो क्या होता है, कोई चीज हमने सोचा कि अरे हम ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो कोर्स हफ्ते भर बाद में, बात अभी नहीं तो कभी नहीं। बोले खुशी कब चाहिए, बोले 1 हफ्ते बाद चाहिए, या कब चाहिए, नहीं 1 साल बाद चाहिए। अभी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो काम करना है अभी के अभी करना है, अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होने वाला, ठीक है। अभी किसी से, अभी खुशी वाला ये पहला स्टेप नहीं लिया तो तुरंत आप अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, हम तो ऑलरेडी खुश है। आप ये मत सोचो कि हाँ अभी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के लिए कर रहे हैं, आप केवल अपने लिए ये आप अपना स्टेप ले लो। अगर हम खुश रहेंगे, हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, जो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो सब खुश रहेंगे। तो आप इन सब की खुशी के लिए, और अगर ईश्वर भी प्राप्त करना है तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और अगर आपके कोई और प्रश्न होंगे तो आप हमारे को भेज सकते हैं। अच्छा, हम इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप इंस्टाग्राम के अंदर प्रश्न पूछ सकते हो, ईमेल करके प्रश्न पूछ सकते हो। अभी आप अनुराग जी के साथ में किसी टीचर जिनके भी संपर्क के साथ आप आए हो, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन आप, अच्छा एक अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, आपने ये 1 घंटा केवल अपने लिए दिया है, तो इसके लिए जोरदार तालियां अपने लिए। और देखिए एक घंटे में सबको स्वामी जी के साथ बड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ खड़ा करके बताइए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब देखिए स्वामी जी साउथ अमेरिका से, इतने अच्छे टीचर हैं स्वामी जी, पूरा एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर हार्ट, इतनी सुंदर स्वामी जी की चेतना, उनके साथ रह के समय बिता के आनंद आ जाता है। मैं तो सालों से मित्र हूँ स्वामी जी के साथ, इतना समय बिताता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी इंडिया में तो नहीं रहते तो ऑनलाइन ही समय बिताने को मिलता है, तो कितना ये क्या अनुराग जी का बंद हो गया कि हमारा बंद हो गया? हाँ, अनुराग जी का शायद कुछ इशू हो गया, बंद हो गया। हाँ चलो ठीक है। तो बस आप, वो तो बिल्कुल बड़े हमारे अच्छे से मित्र, आप सब भी, आप सबके साथ भी हमारे को इतना अच्छा लगा मिलके। बस अब यही है कि ये खुशी जो है ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ये बस आज का नहीं, सिर्फ आज के लिए हो जाए, हमारे को ये परमानेंट चाहिए। तो बस आप बिल्कुल भी मत सोचिए और बस अपने लिए एक गिफ्ट अपने आप को ये दे डालिए। तो बिल्कुल जल्दी मिलते हैं आपको, आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, तो आप लिंक पे करिए और हम आपके साथ बिल्कुल चाहेंगे कि भाई आप अपने जीवन में और आगे बढ़े, और जो भी हमसे हो सकेगा आपको अपने दर्शन कराने के लिए, आपको अपने से मिलवाने के लिए, खुश करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं, आपके साथ में हैं। बस आप अकेले नहीं हैं इस जीवन के रास्ते पे, आपके मित्र हैं समझिए, हम सब आपके साथ में हैं, हम सब आपके साथ में मित्र की तरह हैं, आपके पथ प्रदर्शक की तरह हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे जितने भी शिक्षक हैं आर्ट ऑफ लिविंग का, उनका भी धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, आप सबने समय निकाला, सारे शिक्षकों का धन्यवाद, वॉलंटियर्स का धन्यवाद, कि सब लोग आपने ये एक समय निकाला और हमें बड़ा अच्छा लगा। तो कोलंबिया से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। Thank you, Swamiji. Thank you very much for taking this very wonderful session to all of us, and thanks everyone for joining this session. आपके respective teachers जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है मैसेज के थ्रू, they will
गेट इन टच विथ यू विद द मैसेज कि कब कोर्स है, उनके डिटेल्स के बारे में वो आपको बताएंगे। ठीक है, Okay. थैंक यू स्वामी जी। Thank you. Thank you. Thank you.